السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال اور میں ہوں ماہین سید۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ سروسز ہاسپٹل کے بچہ وارڈ کی ایمرجنسی میں آتش زدگی، 7 اور نوزائیدہ جاں بحق، 16 بچوں سمیت 3 سیکیورٹی اہلکار بھی جھلس گئے۔ جاں بحق بچوں کے DNA ٹیسٹ کرائے جائیں گے۔ نرسری کا خراب AC ٹھیک کرتے ہوئے آگ بھڑک اٹھی، کھلے آکسیجن پائپس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ 4 رکنی کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کا سروسز ہاسپٹل کا دورہ، میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی، تمام ہسپتالوں میں آگ بجھانے کے انتظامات بہتر بنائیں گے۔ مریضوں کے ساتھ ناروا سلوک، سروسز میو اور جنرل ہسپتال کے MS صاحبان کی اسپیکر کے چیمبر میں حاضری۔ ادھر پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں PHA 2011 اور سلاٹر کنٹرول کا بل منظور۔ والنٹیا ٹاؤن سے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک 30 نئی ایئر کنڈیشن بسوں کا افتتاح، نئی بسوں پر پہلے 4 روز سفر مفت ہوگا۔ شہر میں پانی کی قلت، واسا نے 350 سے زائد سب اسٹیشنز کے کنیکشنز منقطع کر دیے۔ موسلادھار بارش نے گرمی کو بھگا دیا، شہریوں نے موسم ٹھنڈا ہونے پر سکھ کا سانس لیا۔ تاریخی بابا کرکٹ گراؤنڈ کی رونقیں ایک بار پھر مان پڑنے، وکلا اور شہریوں کی جانب سے گراؤنڈ میں گاڑیوں کی پارکنگ کا سلسلہ جاری۔ اب ہوگا پنجاب میں دنیا کا سب سے بڑا یوتھ فیسٹیول، رانا مشہود کا ہر یونین کونسل میں لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل یوتھ ڈیولپمنٹ کونسلز بنانے کا اعلان۔ واہگہ بارڈر پر پاک انڈیا ٹریڈ ہاؤس کا افتتاح، لاہور چیمبر کے صدر عرفان کیسر شیخ کا کہنا ہے کہ پاک بھارت تجارت بڑھنے سے دونوں ممالک کی معیشت ترقی کرے گی۔ DCO کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، پولیو مہم کا جائزہ لیا، بند روڈ پر ضلعی بس ٹرمینل میں ناقص صفائی اور بد انتظامی پر سخت برہمی کا اظہار، انچارج بس ٹرمینل میاں اکرم معطل۔ خامہ دفتر میں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے یونیورسٹی سے مشاورت کا اعلان۔ ادھر وزیر اعلیٰ کی مینار پاکستان گراؤنڈ میں شہریوں کی داد رسی، موقع پر احکامات جاری۔ MA کالج میں پرنسپل اور 22 شعبوں کے سربراہان کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، مستعفی ہونے والے پروفیسرز نے کل صبح سٹاف میٹنگ طلب کر لی۔ پیرامیڈیکل سٹاف کا احتجاج 29ویں روز بھی جاری، ہسپتالوں میں مکمل ہڑتال کے باعث علاج معالجہ تعطل کا شکار۔ سیشن عدالت نے قتل کے استغاثے میں پیش نہ ہونے پر شادرہ تھانے کے ایک کانسٹیبل کو اشتہاری اور 2 کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ادھر تھانہ گرین ٹاؤن پولیس نے اہلیہ کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزم کا 2 روزہ ریمانڈ لے لیا۔ عمر مارکیٹ اقبال ٹاؤن کی دکانوں میں شارٹ سرکٹ کے باعث آتش زدگی، 1 کروڑ روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اداکارہ میرا کا دوہرا پن، ایک طرف عدالت میں کیپٹن نوید کے والد کے خلاف حکم امتناعی کا دعویٰ، دوسری جانب راجہ پرویز کی عزت کرنے کی بھی دعوے دار نکلی۔ اور لڑکے لڑکیوں پر بازی لے گئے، پیراگون بوائز اکیڈمی نے گیریزن وومنز کرکٹ کلب کو پریکٹس میچ میں 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے آج پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے۔ سروسز ہسپتال کے نرسری وارڈ میں آج اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے اب تک 7 شیخوار بچے جھلس کر جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 3 سیکیورٹی گارڈ اور 16 نوزائیدہ بچے جھلس کر زخمی ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانتے ہیں سالک نواز سے، جس وقت سروسز ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ سالک، بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ہاسپٹل میں؟ یہ افسوسناک واقعہ آج اس وقت پیش آیا جب دوپہر 3:45 بجے کے قریب سروسز ہسپتال کے نرسری وارڈ میں آگ اچانک بھڑک اٹھی۔ اس آگ پر قابو پانے کے لیے جو ہسپتال انتظامیہ ہے اور ریسکیو کا عملہ ہے، انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ اس آگ لگنے کے نتیجے میں اب تک ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے 7 بچوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ان میں سے 2 بچوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ان کے لواحقین کے حوالے کی جا چکی ہیں، جبکہ باقی جو بچے ہیں ان کے DNA ٹیسٹ مکمل ہونے کے بعد جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ان کے لواحقین کے حوالے کی جائیں گی۔
इस मौके पर हम आपको ये भी बताते चलें कि इस अफसोसनाक वाक़े की खबर सुनने के बाद DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल और जो वज़ीर आला के मामून ख़ुसूसी बराए सेहत हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वो भी मौके पर पहुँच गए और उन्होंने जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उनका जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने भी इस वाक़े के बाद सर्विसेज अस्पताल का उन्होंने दौरा किया और इस वाक़े पे अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इस वाक़े की भरपूर जो है पूरे तरीके से तहकीकात की जाएंगी और जो भी इसमें जो लोग जो हैं जिनकी वजह से ये वाक़या जो है जो इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त तरीन जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सारिक नवाज, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सर्विस हॉस्पिटल में आज लगने वाली आग के नतीजे में जो 7 बच्चे जाँ बहक हुए, 2 बच्चों की लाशें जो है उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। बाकी बच्चों के DNA टेस्ट के बाद उनकी लाशें उनके हवाले की जाएंगी। आइए आपको इस हवाले से रिपोर्ट दिखाते हैं। दोपहर 3:45 बजे सर्विसेज अस्पताल के नर्सरी वार्ड में अचानक आग भड़क उठी। ये वार्ड तीसरी मंजिल पे वाक़ है और यहाँ ऐसे नौज़ायदा बच्चों को रखा जाता है जो कबरत वक्त पैदा होते हैं या पैदाइश के साथ ही किसी संगीन बीमारी में मुब्तला हों। आग लगने के वक्त वार्ड में 25 के करीब बच्चे ज़ेरे इलाज थे। नर्सरी के जिम्मेदारान के मुताबिक आग एक एयर कंडीशनर से शुरू हुई और इससे कबल के इस पर काबू पाया जाता करीबी पर्दों ने भी आग पकड़ ली और पूरे वार्ड में धुआं भर गया। सबसे पहले अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स नन्हे बच्चों को बचाने के लिए हरकत में आए और कुछ ही देर में रेस्क्यू एहलकार भी पहुंच गए। वो अपनी जान हथेली पर रखे कमसिन बच्चों को बचाने के लिए आग और धुएं में कूद पड़े। बच्चों की माएं वार्ड के बाहर क़यामत खेज मराहिल से गुजरती, रोती और दुआएं करती रहीं कि उनके जिगर गोशे महफूज व मामून हों। आग लगने के बाद वार्ड में बिजली भी बंद हो गई, जिससे तारीकी फैल गई। धुएं और तारीकी की वजह से बच्चों को तलाश करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला के मामून ख़ुसूसी बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, DCO नूरुल अमीन मेंगल, पुलिस हुक्काम और अस्पताल की इंतजामिया भी नर्सरी वार्ड में पहुंच गई और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। DCO का कहना है कि इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। ये भी चेक किया जाएगा कि आया वार्ड में आग बुझाने के हालात मौजूद थे। तो इंक्वायरी बोर्ड ऑर्डर कर दिया हुआ है, विदिन 24 आवर्स पता चल जाएगा। अगर कोई एहलकार इसमें ऐसे हैं शामिल जिनकी गफलत की वजह से ये हुआ है या वो इस पे आग पे काबू पा सकते थे या कोई फायर एक्सटिंग्विशिंग कोई इक्विपमेंट वहाँ पे नहीं था और उसकी भी जिम्मेदारी का पता चल जाएगा। वज़ीर आला शहबाज शरीफ भी सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया और बच्चों की हालत के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने कहा कि इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी और तमाम सरकारी अस्पतालों में आग बुझाने के इंतजाम बेहतर बनाए जाएंगे ताकि आइंदा ऐसा सानिया पेश न आए। जी इंशाअल्लाह, बिल्कुल मैंने कहा है कि जो ही रिपोर्ट आएगी न सिर्फ इस अस्पताल के लिए बाकी जगहों को इंशाअल्लाह मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो बच्चे जाँ बहक हुए हैं उनके वालिदैन को सरकारी पॉलिसी के मुताबिक इमदाद फराहम की जाएगी। साथ ही रिपोर्टर इरफान मलिक, शहजाद खान और कैमरा टीम के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। सर्विसेज हॉस्पिटल के नर्सरी वार्ड में आतिशज़दगी से मुतासरा बच्चों के वालिदैन का कहना है कि उन्होंने अपनी मदद आप के तहत अपने जिगर गोशों को निकालने की कोशिश की, लेकिन वार्ड इंतजामिया रुकावट बनी रही। नौज़ायदा बच्चों के लवाहिकीन ने बताया कि अचानक भड़कने वाली आग के बायस अमला बुरी तरह खौफजदा हो गया था, जबकि वार्ड में आग बुझाने के आलात भी मौजूद नहीं थे। लवाहिकीन के मुताबिक वार्ड में धुआं भर जाने के बाद इंतजामिया बेबसी की तस्वीर बनी नजर आई। वालिदैन ने इल्जाम आयद किया कि उन्होंने नौज़ायदा बच्चों को अपने तौर पर निकालने की भरपूर कोशिश की, मगर वार्ड इंतजामिया ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। लवाहिकीन का कहना है कि अगर उन्हें रोकने की कोशिश ना की जाती तो वो अपने बच्चों को बचा सकते थे। सर्विसेज अस्पताल में नर्सरी का खराब AC ठीक करते हुए इसमें आग भड़क उठी, जिसने पूरे वार्ड को अपनी लपेट में ले लिया। नौज़ायदा बच्चों को बाहर निकालते वक्त ऑक्सीजन पाइप खुले छोड़ने से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला मुआयना कमेटी के चेयरमैन की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। सर्विसेज अस्पताल की नर्सरी में नर्स एयर कंडीशन खराब था, जिसको ठीक करने के लिए नर्सिंग इंचार्ज ने बाकायदा M&R को शिकायत दर्ज करवाई।
ज़राए के मुताबिक खराब एसी ठीक करने की 3 बार कोशिश की गई, लेकिन अमले से वो ठीक ना हो सका और 3:15 बजे के करीब इसमें आग भड़क उठी, जिसने फॉल सीलिंग समेत पूरे वार्ड को अपनी लपेट में ले लिया। ज़राए के मुताबिक इस दौरान वार्ड से नौज़ायदा बच्चों को बाहर निकालते वक्त उनके ऑक्सीजन मास्क उतार दिए गए और वार्ड में ऑक्सीजन लीक होना शुरू हो गई, जिससे आग की शिद्दत में इजाफा हो गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वज़ीर आला मुआयना कमेटी के चेयरमैन नजम सईद की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है, जिसमें डीजी हेल्थ डॉक्टर निसार अहमद चीमा, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम मुफ्ती और डॉक्टर असगर साकिब शामिल हैं। कमेटी को 24 घंटों में आग लगने के असबाब का तयन, जानी और माली नुकसान की तफसीलात जमा करने, जिम्मेदारों के तयन और आइंदा के लिए ऐसे वाकयात से बचने के लिए सिफारिशात तैयार करने का टास्क सौंपा गया है। कमेटी ने अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया है। पंजाब असम्बली ने शुतुरमुर्ग के फार्म हाउसेस बनाने और उसके कारोबार की इजाजत देने समेत मजमूई तौर पर 5 बिल मंजूर कर लिए हैं। जबकि सूबाई वज़ीर खजाना राना आसिफ महमूद ने अपनी ही जमात के रुकन असम्बली के खिलाफ फट पड़े हैं। वज़ीर खजाना का कहना है कि उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफे की पेशकश की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली अकबर की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर राना मशहूद अहमद खान की ज़ेर सदारत 1 घंटा 30 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में काफ लीग के 9 मुंतखब रुकन सरदार मोहम्मद खान लगारी ने हलफ उठाया। जुमेरात के रोज होने वाले इजलास में महकमा जंगलात, जंगली हयात व माही परवरी के बारे में सवालात के जवाब सूबाई वजीर अहमद अली औलख ने दिए। इजलास में मुकामी हुकूमत 2012 समेत नए कानूनी बिल मुतारफ करवाए गए, जबकि PHA 2011 और पंजाब एनिमल स्लाटर कंट्रोल का बिल भी मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद शुतुरमुर्ग के फार्म हाउसेस बनाने और इसके कारोबार की इजाजत होगी। गवर्नर पंजाब की जानिब से इतराज लगाकर वापस आने वाले 3 बिल भी दोबारा मंजूर कर लिए गए। गवर्नर के इतराज शुदा बिलों पर ईवान में बहस के दौरान सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रुकन एहसानुल हक के दरमियान तुंदो तेज जुमलों का तबादला हुआ। चौधरी जहीरुद्दीन की जानिब से शहर में ज्वेलरी शॉप्स पर होने वाली डकैतियों के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए सूबाई वजीर कानून ने बताया कि लामा इकबाल टाउन में होने वाली डकैती का एक मुलजम गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब सूबाई वजीर खजाना राना आसिफ महमूद 2 रोज के बाद इजलास में शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि वो ईसाई हैं और इनका मीडिया ट्रायल नून लीग के ही रुकन सूबाई असम्बली की साजिश है। राना आसिफ महमूद के मुताबिक उन्होंने वजारत से इस्तीफे की पेशकश रज़ाकाराना तौर पर की है। ये कलमदान मुझे मेरे कायदीन ने सौंपा, ये इज्जत मुझे उन्होंने दी और मैंने जो कुछ मीडिया मेरा ट्रायल हुआ उस पे मैंने खुद रज़ाकाराना तौर पे उन्हें कहा है कि जी मुझे इस रिस्पांसिबिलिटी से फारग किया जाए। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि राना आसिफ महमूद का मामला अदालत में है, ताहम इखलाकी तौर पर इनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। पार्टी क़यादत जो है कोई फैसला करेगी और उस फैसले की बुनियाद पर ही या तो राना आसिफ साहब जो है वो 13 तारीख तक कंटिन्यू करेंगे तो या फिर जो है वो स्टेप डाउन करेंगे। जुमेरात के रोज पंजाब असम्बली के इजलास में होने वाली कानून साजी के दौरान कोरम की निशानदेही भी की गई, ताहम एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमे की सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन नासिर मसूद और साथी रिपोर्टर उमर असलम के साथ अली अकबर, सिटी 42। अहलियाने लाहौर के लिए खुशखबरी। चेयरमैन LTC ने वलेंशिया टाउन से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 30 नई एयर कंडीशन बसों का इफ्तिताह कर दिया। अलबराक के इंतजामिया ने नई बसों पर 4 रोज के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करने का ऐलान कर दिया है। B28 नंबर रूट पर वलेंशिया टाउन से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक तुर्क कंपनी अलबराक ने 30 नई CNG बस एयर कंडीशन बसेस चलाई हैं। नई बसों का इफ्तिताह चेयरमैन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ख्वाजा अहमद हसन ने किया। उन्होंने कहा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी करने पर पंजाब हुकूमत तुर्की बिलखुसूस अलबराक कंपनी की शुक्रगुजार है। उनका कहना था कि LTC शहर के तमाम रूट्स पर बसों की तादाद में इजाफा कर रही है। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन अलबराक बिन्यामीन, वाइस चेयरमैन LTC मेहर इश्तियाक, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद यूसुफ, चेयर एग्जीक्यूटिव LTC ख्वाजा हैदर लतीफ, जनरल मैनेजर अमजद हुसैन, MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वसीम अजमल, डिप्टी जनरल मैनेजर ऑपरेशन तनवीर सदीकी, हुमा ढाया, DSP मोहम्मद शफीक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन अलबराक बिन्यामीन ने कहा कि वो तिजारती मकासद की बजाय खिदमत का जज्बा लेकर लाहौर आए हैं। उन्होंने कहा कि वो लाहौर में 100 नई और जदीद बसें चलाएंगे। शहर में गर्द आलूद हवा चलने के बाद रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से सताए लाहौरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
दोपहर में लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा तो 4 बजे के करीब अचानक गर्द आलूद हवा चलने लगी। इस दौरान शहर के बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी के हाथों तंग शहरियों ने सुख का सांस लिया। शाम के करीब एक बार फिर बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया, जो बाद में हल्की बारिश में बदल गया, जिससे दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा के कम दबाव का एक सिस्टम लाहौर की फिजा से गुजर रहा है, जो मौसम में तब्दीली का बाइस बना। अगले 24 घंटों के दौरान शहर के बेशतर इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। फिल वक्त लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान में कायम खैमा दफ्तर के मुख्तलिफ इजलासों की सदारत की। उन्होंने शहरियों के मसाइल खुद सुने और उनकी माली इमदाद करने के अलावा मुलाजमत देने के अहकाम भी जारी किए। मज़ीद तफसीलात इमरान यूनुस की इस रिपोर्ट में। मीनार पाकिस्तान के साए तले खैमा दफ्तर में वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में पहला इजलास तवानाई बहरान पर हुआ, जिसमें शमसी तवानाई और बायोमास के जरिए शहरों और देहात में तवानाई की जरूरियात पूरी करने की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने बताया कि सूबे में ड्रिप इरिगेशन के लिए 32 अरब रुपए से मखसूस मंसूबा शुरू किया जा रहा है। उन्होंने देहात में बायोमास के जरिए तवानाई के मंसूबे शुरू करने की हदायत की। शहबाज शरीफ ने बताया कि 50,000 ग्रेजुएट्स को सरकारी इदारों में इंटर्नशिप कराई जाएगी और 4 माह तक 10,000 रुपए माहाना एजाजिया भी दिया जाएगा। दूसरा इजलास आशियाना हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक हुआ, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आशियाना हाउसिंग स्कीम वसाइल से महरूम खानदानों के लिए सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा है। इस स्कीम के लिए बेहतरीन और कीमती जगह का इंतखाब किया गया है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने खैमा दफ्तर में ही जिस्मानी माजूरी की शिकार कमसिन फायजा को मुफ्त तालीमी सहूलियात मुहैया करने का हुक्म जारी किया। 5 नाबीना बच्चों की वालदा किश्वर और फैसलाबाद की सभा के लिए भी माली इमदाद का हुक्म सादिर किया और नाबीना नौजवान शहजाद के लिए मुलाजमत देने के अहकामात जारी किए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से खैमा दफ्तर से मुल्हिका शिकायत कैंप में साइलिन की तादाद में पहले रोज की निस्बत इजाफा नजर आया। अरकान असम्बली और दीगर इदारों के अफसरान शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी अहकामात जारी करते रहे। कैंप इंतजामिया के मुताबिक एक दिन में 800 साइलिन ने राब्ता किया है। उधर अल अस ऑर्गेनाइजेशन के 20 तलबा और तालिबात ने वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से लोड शेडिंग के खिलाफ खैमा दफ्तर कायम करने पर इज़हार यकजहती के लिए मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में वॉक की। नन्हे बच्चों ने हाथ में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ इमरान यूनुस, सिटी 42 मीनार पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान सिक्योरिटी पर मामूर एलीट फोर्स की 2 गाड़ियों की ड्यूटी से गायब होने पर 10 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। एलीट फोर्स की गाड़ी नंबर 42 मौलाना अहमद अली रोड जबकि 43 नंबर गाड़ी यादगार चौक में ड्यूटी पर मामूर थी, जिस पर 10 एहलकारों की ड्यूटी थी। एसएसपी ऑपरेशंस बाबर बख्त ने गाड़ियों का अचानक चेक किया तो दोनों मौके से गायब पाई गई, जिस पर उन्होंने हेड कांस्टेबल दिलशाद अहमद और मजहर फारूक, ड्राइवर मजहर अली और मोहम्मद फैसल, कांस्टेबल मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आसिफ, मुजफ्फर अली, मजहर अली, मोहम्मद अदरीस और मोहम्मद अब्बास को मुअत्तल कर दिया। एसएसपी ऑपरेशंस का कहना है कि अगर सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर कोई एहलकार या अफसर गायब पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। तारीखी बाबा क्रिकेट ग्राउंड की रौनकें एक बार फिर मांद पड़ गईं। वकला और शहरियों की जानिब से ग्राउंड में गाड़ियों की पार्किंग का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक हफ्ता कबल बाबा क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया और क्रिकेट खेलकर यहां खेलों की सरगर्मियां एक बार फिर बहाल करने का ऐलान किया। इसके बाद डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली राना मशहूद अहमद खान ने भी बाबा ग्राउंड में एक नुमाइशी क्रिकेट मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और यहां नई घास उगाने के साथ दीगर सहूलतें फराहम करने का ऐलान किया, लेकिन अब तक बाबा ग्राउंड से पार्किंग को ख़त्म नहीं किया जा सका। अरकान असम्बली और वकला के साथ शहरियों की गाड़ियां भी यहां पार्क की जा रही हैं, जिसके बायस नौजवानों को यहां क्रिकेट खेलने में दुश्वारी पेश आ रही है। नौजवान खिलाड़ियों ने मुतालबा किया है कि यहां से पार्किंग ख़त्म कराई जाए ताकि वो अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ कर सकें। शहर में 4 रोज़ा पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। 14 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। सूबाई दारुल हुकूमत में पोलियो मुहिम के आखिरी रोज़ कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक मलिक और डीसीओ नूरुल-अमीन मेंगल ने पोलियो के हाई रिस्क इलाकों का दौरा किया और पोलियो मुहिम का जायजा लिया। दौरे के मौके पर ईडीओ हेल्थ डॉक्टर इनामुल हक और स्टाफ ऑफिसर डीसीओ तारिक जमान भी मौजूद थे। कमिश्नर और डीसीओ ने समनाबाद से मुल्हिका आबादियों का दौरा किया।
कमिश्नर ने बच्चों की उंगलियों पर लगे निशानात देखे और वालिदैन से गुफ्तगू की। बाद डीसीओ ने न्याजी अड्डा और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बस टर्मिनल का भी दौरा किया और पोलियो टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया। बस टर्मिनल में नाक़िस सफाई और इंतजामात पर डीसीओ ने सख्त बरहमी का इजहार किया और इंचार्ज बस टर्मिनल मियां अकरम को मुअत्तल कर दिया। नूरुल अमीन मैंगल ने कहा कि पोलियो के खतरों से महरूम रह जाने वाले बच्चों के वालिदैन हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन रीजन बी ने मुस्लिम टाउन में एफबीआर के दफ्तर समेत 100 से ज्यादा इमलाक को प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर सरबमोहर कर दिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन रीजन बी के AATO मलिक असलम ने लीगल स्टाफ के हमरा मुस्लिम टाउन 23C ब्लॉक में वाक़े एफबीआर के इंटेलिजेंस दफ्तर को प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने पर सरबमोहर कर दिया। एक्साइज हुकाम के मुताबिक ये जायदाद शिकारपुर में तैनात एक पुलिस अफसर की मलकियत है और उसके जिम्मे 65,000 रुपये टैक्स वाजिबुल अदा है। मुस्लिम टाउन में ही वाक़े अब्दुल रज़ाक के घर को 41,000 रुपये टैक्स जमा न कराने पर सरबमोहर कर दिया गया। इसके अलावा मुस्लिम टाउन और गार्डन टाउन में 100 से ज्यादा इमलाक प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने पर सरबमोहर कर दी गई। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्डिंग पीरियड की मुद्दत खत्म होने पर डॉक्टर्स अस्पताल का तौसी मंसूबा रुकवा दिया है। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग और बिल्डिंग कंट्रोल ने कैनाल रोड पर वाक़ डॉक्टर्स हॉस्पिटल इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए तौसी मंसूबा रुकवा दिया है। अस्पताल इंतजामिया ने तौसी मंसूबे के तहत बेसमेंट की तामीर के लिए खुदाई का काम शुरू कर रखा था, जिसे LDA के टाउन प्लानिंग ब्रांच और बिल्डिंग कंट्रोल ब्रांच के हुक्म पर रुकवा दिया गया है। डॉक्टर्स अस्पताल इंतजामिया ने तौसी मंसूबे के लिए इमारत पर मजीद 3 फ्लोर और एक बेसमेंट की तामीर का नक्शा मंजूर करा रखा था। ताहम इसकी मुद्दत गुजरने के 2 साल बाद काम शुरू किया गया, जिस पर LDA ने नोटिस जारी करके तामीरात का काम फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे दिया है। LDA हुकाम ने फैसल टाउन में एक गैर कानूनी कमर्शियल इमारत को सील कर दिया, जबकि जेर तामीर एक गैर कानूनी बेसमेंट की दीवारें मिसमार करके काम रुकवा दिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा टाउन प्लानिंग के मुताबिक फैसल टाउन ब्लॉक C में प्लाट नंबर 24 पर कायम रिहायशी इमारत को गैर कानूनी तौर पर कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे शोबा कमर्शियल के हुकाम ने सील कर दिया है। फैसल टाउन ही में ब्लॉक C के प्लाट नंबर 882 पर गैर कानूनी तौर पर बेसमेंट तामीर की जा रही थी। नक्शे में इसकी मंजूरी हासिल नहीं की गई थी। शोबा टाउन प्लानिंग ने इसी बिना पर मज़कूरा तामीर के खिलाफ कार्रवाई की। इकबाल टाउन अलहम्द कॉलोनी उमर मार्केट में शॉर्ट सर्किट के बायस दुकानों में लगने वाली आग से 1 करोड़ रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। अलहम्द कॉलोनी उमर मार्केट में मोहम्मद इस्लाम नामी ताजर की कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली और दूसरी दुकानों को भी अपने लपेट में ले लिया। आग लगने से मोहम्मद इस्लाम और मोहम्मद अकरम की दुकानें जलकर राख हो गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दुकानदारों के मुताबिक आग लगने से उनका 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से इमदाद की अपील की है। पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज 29वें रोज भी जारी रहा। अस्पतालों में पैरामेडिक्स की मुकम्मल हड़ताल के बायस इलाज मुआलजा बदतरीन तातुल का शिकार है और दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाज 29वें रोज भी जारी रहा। आउटडोर वार्ड, इंडोर वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी के शोबों में मुकम्मल हड़ताल से मरीजों का इलाज मुआलजा बदतरीन तातुल का शिकार है। हड़ताल के बाद सरकारी अस्पतालों में दर्जनों की तादाद में ऑपरेशन मुलतवी होने से मरीज शदीद परेशानी का शिकार हैं। ताहम इमरजेंसी, ICU, CCU, गायनी और पीड़ित के शोबों में काम मामूल के मुताबिक किया जा रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ ने जिना अस्पताल में एहतजाज के साथ साथ टायर जलाए और सड़क ब्लॉक कर दी। स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। PIC के आउटडोर में भी पैरामेडिक्स ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और जेल रोड तक रैली निकाली। उन्होंने कहा कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज और हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। MA कॉलेज में प्रिंसिपल और 22 शोबों के सरबराहान के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। मुस्ताफी होने वाले प्रोफेसर्स ने कल सुबह स्टाफ मीटिंग तलब कर ली है, जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। MA कॉलेज के 22 शोबों के सरबराहान ने प्रिंसिपल डॉक्टर फरहान इबादत यार खानदान के नारवा सलूक के बाद इस्तीफे दे दिए हैं। डॉक्टर फरहान इबादत यार खानदान इब्तदाई तौर पर इस्तीफों से लाइल्मी का इजहार करते रहे, मगर अब उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है कि उन्हें इस्तीफे मौसूल हो गए हैं। मुस्ताफी होने वाले प्रोफेसर्स का कहना है कि प्रिंसिपल का रवैया उनके साथ हिद तक अमेज है और वो कॉलेज के इंतजामी उमूर भी मुनासिब अंदाज में नहीं चलाने दे रहे। मुस्ताफी प्रोफेसर्स के मुताबिक स्टाफ मीटिंग में मजीद इस्तीफे दिए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें कॉलेज में डिसिप्लिन कायम करने के बाद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और वो इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे।
पैरागॉन बॉयज एकेडमी ने गैरिसन विमेंस क्रिकेट क्लब को प्रैक्टिस मैच में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। खवातीन क्रिकेटर्स का कहना है कि चिलचिलाती धूप में की जाने वाली प्रैक्टिस पूरे सीजन में मददगार साबित होती है। इजाज वसीम बाकरी की रिपोर्ट। गैरिसन कॉलेज वाल्टन कैंपस में खेले गए मैच में गैरिसन विमेंस क्लब की क़यादत मालिका मंसूर, जबकि पैरागॉन बॉयज एकेडमी की तरफ से कौमी विमेंस टीम की रुकन बिस्मा मारूफ ने कप्तानी की। गैरिसन क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 19 ओवर्स में 85 रन बनाए। मरियम हसन शाह 22, सिद्रा नवाज 14 रन के साथ नुमाया रहीं। पैरागॉन एकेडमी की कप्तान बिस्मा मारूफ और अवैस अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पैरागॉन एकेडमी ने मतलूबा हदफ 12वें ओवर में बगैर किसी विकेट के नुकसान पर पूरा करके मैच 10 विकेटों से जीत लिया। फातेह टीम की जानिब से अबू बकर खान ने 54 रन बनाए। खवातीन क्रिकेटर्स का कहना है कि वो लड़कों के खिलाफ खेलकर आइंदा सीजन के लिए तैयारी कर रही है। सख्त मौसम में की जाने वाली प्रैक्टिस सूदमंद साबित होगी। आगे जो क्रिकेट आ रही है उसको फोकस कर रहे हैं। अभी सुपर 3 के कराची में होना है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं फिजिकली, मेंटली, हर तरह से। इस मौसम में प्रैक्टिस का ये कि एक तो लड़कियों में, क्योंकि जो आगे क्रिकेट आ रही है, फिटनेस लेवल का बड़ा मसला है, क्योंकि लड़कियां अब स्किल तो उनमें वही है जो लड़कों में भी है या आगे इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट में। यही मैचेस होते हैं जिनसे हम लोग सीखते हैं, अपनी गलतियां निकालते हैं जो प्रैक्टिस में हमारी नहीं निकलती। यहाँ से गलतियां निकल के हम आगे फिर अपनी गलतियों पर काम करके आगे जाकर परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिस मैच खेलने वाली खवातीन क्रिकेटर्स का बुनियादी हदफ सितंबर में होने वाला T20 वर्ल्ड कप है। खिलाड़ी पुरअज़म है कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस और फिटनेस साबित करके न सिर्फ कौमी टीम का हिस्सा बनेगी बल्कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए नुमाया कारकर्दगी भी दिखाएंगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ एजाज वसीम बाखरी, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। पानी की बढ़ती हुई किल्लत के बाइस वासा ने शहर में मौजूद सर्विस स्टेशन के वाटर सप्लाई कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। डायरेक्टर जनरल LDA आहद खान चीमा के हुक्म पर वासा ने पीने के पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए शहर में मौजूद तमाम सर्विस स्टेशन के वाटर सप्लाई के कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला किया है। वासा हुक्काम ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर शहर में मौजूद 350 से ज़ायद सर्विस स्टेशन को पानी की फराहमी मुनक़ता करना शुरू कर दी है। DG LDA आहद खान चीमा का कहना है कि शहर में पानी की किल्लत पर काबू पाए बगैर सर्विस स्टेशन को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की धुलाई के लिए पानी फराहम करना मुमकिन नहीं। इनका कहना था कि पानी की किल्लत दूर होते ही सर्विस स्टेशन को वाटर सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने घरेलू झगड़े पर अहलिया को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजिम सकीर अहमद का 2 रोज़ा रिमांड ले लिया है। ASP टाउनशिप फिदा हुसैन के मुताबिक 3 रोज कबल मुलजिम सगीर अहमद ने घरेलू झगड़े पर अहलिया शमीम बेगम का ब्लेड से एक कान काट दिया जबकि चेहरा भी जख्मी कर दिया था, जिसके बाद मुलजिम सगीर अहमद फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम को फैसल टाउन के इलाके से हिरासत में लिया और अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया है। मुलजिम ने बताया कि वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मुलाजिम है। उसकी बीवी घरेलू झगड़े के बाद मेके चली गई थी। बेटे की सालगिरह पर बीवी को मनाकर वापस लाया जहां दोबारा झगड़ा हो गया। मुलजिम का कहना है कि उसने बीवी को जख्मी नहीं किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शमीम बेगम को शुबा था कि उसके खामन के आयशा नामी खातून से ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर झगड़ा करता रहता था। लाहौर हाई कोर्ट ने PCB के सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ मुकदमे के अखराज की दरख्वास्त समाअत के लिए जस्टिस इबादुर रहमान लोधी को भिजवा दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल सत्तार असगर की अदालत में दरख्वास्त गुजार PCB के सिक्योरिटी गार्ड अमीन और दीगर की जानिब से PCB के वकील ने अदालत के रूबरू बताया कि अदालत आलिया के कसाफी स्टेडियम के हवाले से हुक्म इम्तनाई जारी करने के बावजूद पुलिस ने PCB के 3 सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की सारी कार्रवाई इंतकामी है। अदालत FIR को खारिज करने का हुक्म दे। फाजिल जज ने करार दिया कि PCB से मुतालिक केसेस जस्टिस इबादुर रहमान के पास ज़ेर समाअत हैं, लिहाजा इस केस की समाअत भी जस्टिस इबादुर रहमान की अदालत में ही की जाए। वकला और साइलिन की सहूलत के पेश नज़र ऐवान अदल में वाक़ 2 इमारतों की बालाई मंजिलों को आईनी पुल के जरिए आपस में मिला दिया गया है। अब वकला और साइलिन को एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने के लिए सीढ़ियां उतरने और चढ़ने के अजाब से निजात मिल जाएगी। शाहीन अतीक की रिपोर्ट। ऐवान अदल में रोजाना हजारों साइलिन हसूल इंसाफ के लिए आते हैं। ऐवान अदल में 2 इमारतों में से एक में लाइब्रेरी जबकि दूसरे में जुडिशल ब्लॉक है। वकला और साइलिन को एक इमारत से दूसरी में जाने के लिए कभी सीढ़ियां उतरना पड़ती हैं तो कभी चढ़ने का अजाब झेलना पड़ता है। सेशन जज की वसातत से आईनी पुल बनाने का ठेका PWD को दिया गया, जिसे 70 लाख रुपए की लागत से रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया गया है। लाहौर बार के सीनियर नायब सदर मलक फैज खोखर एडवोकेट का कहना है कि आईनी पुल बनने से वकला
को अदालत से लाइब्रेरी तक आने में दुश्वारी नहीं उठाना पड़ेगी। इस ब्रिज में लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट हाई कोर्ट को भेजी गई थी और हाई कोर्ट ने इसमें PWD और जितने भी उनके मुतलका जो इदारे हैं उनकी अप्रूवल से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके लिए फंड जो है वो इशू किया है और ये 70 लाख रुपए में ब्रिज बनाए जी। ऐवानी अदल में असूल इंसाफ के लिए आने वाले साइलिन का कहना है कि लाहौर बार ने आईनी पुल बनाकर बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वो रश की वजह से अपनी मुतलका अदालत तक बरवक्त नहीं पहुंच पाते थे। पुल बनने से बहुत ज़्यादा इजी हो गया। ये हम लोग बहुत परेशान थे पहले, मतलब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी थी, खासकर हार्ट पेशेंट जो हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम था। सीढ़ियाँ ऊपर जाना नीचे आना ये बड़ा मसला था। ये बहुत बड़ा काम किया लाहौर बार ने। ये वकला को बार में आने के लिए, अदालत में जाने के लिए बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। धूप में नीचे जाना पड़ता था, ऊपर जाना पड़ता था, ये आसानी के लिए बहुत बड़ा लाहौर बार ने बहुत बड़ा काम किया है। आईनी पुल बनने से वकला और साइलिन ने सुख का सांस लिया है। बार ओहदेदारों का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अब आईनी पुल का इफ्तिताह इसी माह करेंगे। कैमरामैन वाजिद अली के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर राना मशहूद अहमद खान ने हर यूनियन काउंसिल में 13 लड़कों और 7 लड़कियों पर मुश्तमिल यूथ डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पंजाब की 3454 यूनियन काउंसिल से ये 8 लाख नौजवान अगस्त में पंजाब यूथ फेस्टिवल करवाएंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल होगा। राना मशहूद अहमद खान ने सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में बताया कि रमज़ान मुबारक के फौरन बाद यूथ फेस्टिवल और फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सूबे के 5,78,62,000 नौजवानों को उनके हुकूक देगी। अगर अब भी नौजवानों को हुकूक से महरूम रखा गया तो फिर खूनी इनकलाब आएगा। प्रोग्राम में यूथ पॉलिसी के लिए हुकूमत पंजाब को टेक्निकल असिस्टेंस फराहम करने वाली नौजवानों की NGO बरगद की जॉइंट डायरेक्टर सलमा भट्ट ने भी शिरकत की। मेज़बान नजम अली खान के सवालों के जवाब देते हुए राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि नौजवानों को लैपटॉप 30 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद देने का फैसला नहीं किया गया, बल्कि इसका बाकायदा ऐलान तो जलसे से 5 माह पहले पंजाब के बजट में कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि यूथ फेस्टिवल में 70 मुल्कों के सफीरों को भी दावत दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त दुनिया के 23 मुल्कों को 11.5 लाख डॉक्टर और इंजीनियर दरकार हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड समेत 11 मुल्क ऐसे हैं जिन्हें शेफ, प्लम्बर और कारपेंटर जैसे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। उनका कहना था कि ये पंजाब का यूथ फेस्टिवल इतना बड़ा होगा कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकता है, और इसी को देखते हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी दुनिया के सबसे बड़े यूथ फेस्टिवल कराने की प्लानिंग शुरू कर दी है। नौजवानों के माशी मसाइल के सवाल पर उन्होंने बताया कि मजीद 1.25 लाख होनहार तलबा तलिबात को लैपटॉप मिलेंगे। 1.5 लाख नौजवानों में 3 अरब रुपए के कर्जे 50,000 फीकस के हिसाब से दिए जाएंगे। 50,000 तालिब इल्मों को इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी। उनका कहना था कि पंजाब का नौजवान शहबाज शरीफ के साथ है और उनकी इनकलाबी पॉलिसियों और सूबे के अवाम के मसाइल के हल के लिए अंत तक मेहनत को कदर की निगाह से देखता है। एविएशन लीग ऑफ सिविल एविएशन एम्प्लॉयज की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई के बाद सिविल एविएशन का रेफरेंडम रोक दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर जुमेरात को CAA में यूनियन का होने वाला रेफरेंडम एविएशन लीग ऑफ सिविल एविएशन एम्प्लॉयज की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई के बाद रोक दिया गया है। रेफरेंडम के खिलाफ हुक्म इम्तनाई पर बात करते हुए यूनियन ऑफ सिविल एविएशन एम्प्लॉयज के जनरल सेक्रेटरी अयाज भट्ट का कहना था कि रेफरेंडम वक्त पर हो जाते तो इनकी जमात भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर सकती थी। उन्होंने कहा कि हुक्म इम्तनाई के जरिए 9,000 मुलाजमीन की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। उन्होंने दावा किया कि जब भी रेफरेंडम होगा उन्हीं की जमात को कामयाबी हासिल होगी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मन्नान ग्रुप ने तवानाई बहरान और शाह आलम मार्केट के सदर शेख फजल इलाही के बेटे हमजा इलाही के कत्ल के खिलाफ 23 जून को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। एम्बेसडर होटल में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मन्नान ग्रुप का इजलास सदर मियां अब्दुल मन्नान की जेर सदारत मुनक़्क़द हुआ। इजलास में शेख इरशाद नईम मीर, शेख फजल इलाही, कामरान भट्ट, अयूब भट्ट, अब्दुल वदूद अलवी, खालिद महमूद भट्ट, फारूक आज़ाद, फारूक हुसैन, रज़ाक शाह, शाहिद बिलाल समेत दीगर ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। मियां अब्दुल मन्नान ने कहा कि तवानाई के बहरान के बायस कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, जबकि अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मन्नान ग्रुप के प्लेटफॉर्म से 16 जून को शाह आलम मार्केट चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जबकि 23 जून को लाहौर समेत पूरे सूबे में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। नईम मीर ने कहा कि हड़ताल के हवाले से दीगर ताजिर तंजीमों ने भी उनका साथ देने का वादा किया है और हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए इकदाम भी शुरू कर दिए गए हैं।
मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग लंडा बाजार के सदर नुसरत भट्ट की नमाज जनाजा शाह मोहम्मद गौस दरबार लंडा बाजार में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में ताजरों और मुस्लिम लीग नून के वर्कर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लंडा बाजार के सदर नुसरत भट्ट दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा शाह मोहम्मद गौस दरबार में अदा की गई, जिसमें LTC के चेयरमैन ख्वाजा अहमद हसन, वज़ीर आला शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल असिस्टेंट गजाली भट्ट, सीनियर सहाफ़ी राजा महबूब, साबिक डेप्यूटी मेयर असगर जट, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्टाफ यूनियन के सदर तनवीर इकराम, साबिक नायब नाज़िम UC 126 मोहम्मद यूनुस खान, मोहम्मद सगीर भट्ट, आबिद चौधरी, रहमान जट समेत ताजरों और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए रस्म कुल जुम्मे की सुबह 9 बजे उनकी रिहाइश का गली नंबर 3 मिस्री शाह में अदा की जाएगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साबिक चेयरपर्सन हिना जैलानी का कहना है कि पुलिस स्टेशन में कम उम्र बच्चों पर तशद्दुद और गैर कानूनी हिरासत के वाक़यात में इजाफा बाइसे तफ्तीश है। हुकूमत वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करे। प्रेस क्लब में AGHS चाइल्ड राइट्स यूनिट की जानिब से पंजाब की जेलों में कैद बच्चों की हालत पर मबनी सालाना रिपोर्ट पेश करने के हवाले से हिना जैलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क़दसिया माजिद, मिशाल अली भुट्टा, अजहर नदीम और हसनैन जमील समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हिना जैलानी ने कहा कि रिपोर्ट का मकसद पंजाब की जेलों में कैद बच्चों की तादाद और उनके हालात की हकीकी तस्वीर पेश करना है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जराइम के इल्ज़ाम में जेल में कैद बच्चों की तादाद में गुज़श्ता साल की निस्बत कमी वाक़ हुई है, जो कि खुशाइन बात है, लेकिन पुलिस स्टेशन में बच्चों पर तशद्दुद, गैर कानूनी हिरासत के वाक़यात का बढ़ना बाइसे तशवीश है। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। शहर में जुराइम की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे सिटी क्राइम में। नौलखा के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में वर्कशॉप की छत पर खड़ा नौजवान हलाक, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक नौलखा के इलाके में वहीद भट्ट ग्रुप का अनवर खान के साथ मामूली तलक कलामी पर झगड़ा हो गया। मकामी अफराद ने दोनों में सुलह कराने के लिए दोपहर 3 बजे का वक्त तय किया। जब दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई तो उनमें दोबारा झगड़ा हो गया, जिस पर दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की जद में आकर वर्कशॉप की छत पर खड़ा उस्मान हलाक हो गया, जबकि लतीफ़ खान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मकतूल की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मकतूल हरबंसपुरा के इलाके फतेहगढ़ का रिहायशी और स्टेशन के करीब वर्कशॉप में मुलाजिम था। गुलशन इकबाल पुलिस ने शहबाज और सोनी डकैत गैंग के सरगना को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। SHO गुलशन इकबाल नासिर हमीद के मुताबिक उन्हें मुखबर के जरिए इत्तला मिली थी कि मेहरान ब्लॉक डूंगी ग्राउंड में शहबाज और सोनी अपने साथी नासिर महमूद के हमरा डकैती की नीयत से मौजूद है। इस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए छापा मारकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, 9 मोबाइल फ़ोन और हज़ारों की नकदी भी बरामद कर ली है। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी अदालत में। सेशन अदालत ने मुल्तान रोड पर मुनहदम होने वाली दवासाज फैक्ट्री के मालिकान की दरख्वास्त जमानत की समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी है। एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद जरकान की अदालत में खाड़ा स्टॉप मुल्तान रोड पर मुनहदम होने वाली दवासाज फैक्ट्री के मालिकान जुबैर, जहीर और जफर की दरख्वास्त जमानत की समाअत कानूनी पेचीदगियों के बायस न हो सकी। अदालत ने केस की समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी। आइंदा तारीख पर वकला मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर बहस करेंगे, जबकि मुल्जिमान पर फर्द जुर्म भी उसी रोज आयद की जाएगी। थाना सब्जजार पुलिस ने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ चालान पेश कर रखा है, जिसमें कहा गया कि मुल्जिमान की गफलत से 15 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद शफी के इख्तियारात वापस लेने का वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए सेक्रेटरी कानून से जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अहमद की अदालत में राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने 19 फरवरी 2011 में मोहम्मद शफी को एहतसाब अदालत का जज मुकर्रर किया, लेकिन जब वो रिटायर हुए तो 24 मई 2012 को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हुए उनका नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया और उनकी अदालत का इजाफी चार्ज कोर्ट नंबर 2 के जज अहमद नवाज रांझा को दे दिया गया। अदालत को बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने मोहम्मद शफी का बतौर जज एहतसाब अदालत का नोटिफिकेशन इसलिए मनसूख कर दिया है क्योंकि बतौर सेशन जज वो रिटायर्ड हो चुके हैं, जबकि नैब के कवानीन के मुताबिक रिटायरमेंट के बावजूद भी मोहम्मद शफी बतौर जज एहतसाब अदालत काम कर सकते हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी करके 25 जून को जवाब तलब कर लिया है।
لاہور ہائی کورٹ نے ٹیچر تشدد کیس کی منتقلی کے لیے دائر درخواست کی سماعت 19 جولائی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ محض الزامات کی بنیاد پر کیس دوسری عدالت میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس عمر بندیال کی عدالت میں اسکول ٹیچر نفیس خان پر تشدد کے ملزم سابق MP اسلم مڈھیانہ کی جانب سے انسداد دہشت گردی سرگودا کی عدالت سے کیس کسی دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی سماعت ہوئی۔ اسلم مڈھیانہ کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے عدالت کو بتایا کہ سرگودا بار کی ہدایت پر کوئی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہو رہا اور انہیں سرگودا کی عدالت سے انصاف کی کوئی توقع نہیں۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ کیس کسی دوسری عدالت میں لگا دیا جائے۔ عدالت میں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل عبدالصمد نے کہا کہ کیس ٹرائل کے آخری مراحل میں ہے، ملزم کیس کو التوا دینا چاہتا ہے۔ عدالت نے سرگودا بار کے صدر اور سیکرٹری کو ہدایت کی کہ وہ اسلم مڈھیانہ کے وکلاء کی پیروی سے تمام رکاوٹیں دور کریں۔ عدالت نے قرار دیا کہ محض الزامات کی بنیاد پر کیس ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس منظور احمد ولی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اسکول ٹیچر تشدد کیس کے ملزم اسلم مڈھیانہ کی درخواست ضمانت کی سماعت وکیل کے پیش نہ ہونے پر 11 جون تک ملتوی کر دی۔ اسکول ٹیچر محمد نفیس نے کہا کہ عدالت نے کیس ٹرانسفر نہ کرنے کے حوالے سے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ سٹی 42 میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کیا ہو رہا ہے کھیل کے میدان میں آپ جان سکیں گے سٹی سپورٹس میں۔ اجلٹی لاجسٹکس کی سالانہ کھیلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے کے بیڈمنٹن مقابلوں میں پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ نے برتری حاصل کر لی۔ انڈسٹریل ایریا کوٹ لکھپت میں اجلٹی لاجسٹکس کے زیر تعمیر بیڈمنٹن کورٹ میں ہونے والے مقابلوں کے ابتدائی روز ریجنل مینیجر پروجیکٹ سینٹرل اینڈ نارتھ احمد حسن صابری مہمان خصوصی تھے، جبکہ مینیجر سیلز رضوان احمد اور مینیجر IT نوید احمد بھی موجود تھے۔ ڈبلز مقابلوں میں انیل جان اور محمد اختر کی جوڑی نے شہزاد جمیل اور سلیم شہزاد کو 2-0 سے شکست دی، جبکہ دوسرے میچ میں وقاص خاور اور صادق جویا نے سعد بن ارشد اور محمد قاسم کے خلاف بھی 2-0 سے کامیابی حاصل کی۔ سنگل مقابلوں کا انعقاد ہفتے کو ہوگا۔ ہیلے کالج نے 30 سال بعد پنجاب یونیورسٹی انٹر کالجیٹ سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گورنمنٹ کالج جھنگ کا سفر سیمی فائنل میں ختم ہو گیا۔ اولڈ کیمپس میں کھیلے گئے انٹر کالجیٹ ٹورنامنٹ کے اہم میچ میں ہیلے کالج آف کامرس نے گورنمنٹ کالج جھنگ کو 119 رن سے شکست دے کر 30 سال بعد فائنل میں جگہ بنا لی۔ ہیلے کالج نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 40 اوورز میں 7 وکٹوں پر 225 رنز بنائے۔ عبداللہ ہاشمی 54 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جواب میں گورنمنٹ کالج جھنگ کی ٹیم 32ویں اوور میں 106 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ محمد ظفر 29 اور تیمور کاظمی 28 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔ فاتح ٹیم کی جانب سے حسن شاہد، فیضان بٹ اور مجاہد بلال نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ویسٹ زون بلو نے نارتھ زون بلو کو میچ جیتنے کے لیے دوسری اننگ میں 50 رنز کا ہدف دیا ہے۔ LCCA کرکٹ گراؤنڈ میں جاری میچ کے دوسرے روز نارتھ زون بلو نے ویسٹ زون بلو کے خلاف پہلی اننگز کے سکور 235 رنز کے جواب میں 287 رنز بنائے اور پہلی اننگ میں 52 رنز کی برتری حاصل کی۔ اخلاق بٹ 76 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جواب میں ویسٹ زون بلو کی ٹیم دوسری اننگ میں 101 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی اور پہلی اننگ میں 52 رنز کے خسارے کے باعث نارتھ زون بلو کو میچ جیتنے کے لیے 50 رنز کا ہدف دیا ہے۔ عامر بٹ 21 اور رئیس بابر 20 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نارتھ زون بلو کی جانب سے سلمان غفور اور محمد تنویر نے 3-3، عبد المتین اور حافظ سلمان نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ نارتھ زون 50 رنز کا ہدف پورا کرنے کے لیے کل اننگ کا آغاز کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل جاوید میانداد بھی قذافی اسٹیڈیم کی دیواروں کو بچانے کے لیے میدان میں نکل آئے۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ماضی کے معروف کھلاڑی جاوید میانداد نے دورہ سری لنکا کی ٹیسٹ ٹیم کے لاہور میں پریکٹس کرنے والے کھلاڑیوں کو کوچنگ کی ٹپس دیں۔ اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید میانداد نے کہا کہ انہوں نے چیئرمین کرکٹ بورڈ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو بیٹنگ ٹپس دیں گے اور اسی وعدے کو نبھانے کے لیے وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی آئے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کی دیوار کے گرائے جانے کے حوالے سے جاوید میانداد نے کہا کہ کھیلوں کو سیاست سے الگ رہنا چاہیے۔ کاروباری دنیا سے کچھ خبریں شامل ہوں گی سٹی بزنس میں۔ لاہور چیمبر کے صدر عرفان کیسر شیخ نے کہا کہ پاک بھارت تجارت بڑھنے سے دونوں ممالک کی معیشت ترقی کرے گی اور غربت میں کمی لانے میں بھی مدد ملے گی۔ یہ بات انہوں نے واگا بارڈر پر پاک انڈیا ٹریڈ ہاؤس کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ عرفان کیسر شیخ نے بتایا کہ پاک انڈیا ٹریڈ ہاؤس کے قیام سے دونوں ممالک کے تاجروں کو نہ صرف صحیح معلومات تک رسائی ہو سکے گی بلکہ اس سے باہمی تجارت کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی۔ پاک انڈیا ٹریڈ ہاؤس کے ذریعے کاروباری گروپس
को इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक और जॉइंट वेंचर से मुतालिक भी आगाही हासिल होगी। इसके अलावा थर्ड पार्टी वेयर हाउसिंग की सहूलत मिलने से पाकिस्तान और भारत के ऐसे ताजर जिनके एक दूसरे के मुल्कों में रवाबित नहीं हैं, वो भी मुस्तफीद हो सकेंगे। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर काशिफ यूनुस महर ने कहा है कि कोयले को गैस में तब्दील करके बिजली, हाइड्रोजन और तवानाई के दीगर कीमती अक़साम पैदा की जा सकती हैं। ये बात उन्होंने लाहौर चैम्बर और समीरा के इश्तराक से कोयले को गैस में तब्दील करने के फ़वाइद के मौजू पर मुनक़िदा वर्कशॉप से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तहकीकी इदारों को चाहिए कि ताजरों को कोयले को गैस में तब्दील करने की टेक्नोलॉजी के मुतालिक आगाही दें। पाकिस्तान को तवानाई के संगीन बहरान का सामना है, जिससे सनती शोबा बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बिजली की पैदावार के लिए गैस और तेल पर इन्हिसार किया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ तवानाई के बहरान का सामना है बल्कि सनतों की पैदावारी लागत भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि खुशकिस्मती से मुल्क कोयले के ज़खायर से माला माल है, लेकिन वो इससे इस्तेफादा नहीं कर सके। और अब एक नज़र गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। और अब बुलेटिन में कुछ खबरें शामिल की जाएंगी सिटी एंटरटेनमेंट से। मीरा का दोगलापन सामने आया है कि अपने मंगेतर के वालिद के खिलाफ दावा दायर करके मुकर गईं। अदाकारा का कहना है कि उन्होंने दावा दायर ही नहीं किया, बल्कि वो तो राजा खालिद परवेज की बहुत इज्जत करती हैं। अदाकारा मीरा ने एक रोज कबल सिविल जज की अदालत में अपने मंगेतर कैप्टन नवीद के वालिद राजा खालिद परवेज के खिलाफ हुक्म इम्तनाई के लिए दावा दायर किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि डिफेंस डबल जी वाला घर उन्होंने राजा खालिद परवेज को फरोख्त नहीं किया, बल्कि राजा खालिद परवेज का 4 करोड़ में कोठी खरीदने का दावा झूठा है। दूसरी जानिब राजा परवेज के पास मीरा की दस्तखत शुदा दस्तावेजात और उनका दिया हुआ चेक भी सबूत के तौर पर मौजूद है। एक तरफ अदाकारा मीरा राजा खालिद परवेज के खिलाफ अदालत से रुजू करती हैं, तो दूसरी जानिब उनकी बेहद इज्जत का दावा भी करती नजर आती हैं। सिर्फ की न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब